کرسچینٹی کی ایسی تعداد ہے کہ لوگ جو ہے جس طریقے سے ہم نے کرسمس کو منانا چاہیے اس طریقے سے ہم نہیں منا رہے. افسوس کے ساتھ کہ کھابے کھا لے، کھانے کھا لے، انجوائے کر لیا، ہم اس کو کرسمس کہتے ہیں. بلکہ کرسمس یہ کہتے ہیں اس کو کرسمس، یونٹی کو کرسمس کہتے ہیں. یونٹی کا مطلب ہے کہ اکٹھے ہونا، یہ کرسمس ہے. اور دوسری بات، اکٹھے ہو کر مسیح کی باتوں کو شیئر کرنا ہے دوسرے کے ساتھ، مسیح کی تعلیم کو شیئر کرنا، مسیح کی بشارت کو ایک دوسرے تک شیئر کرنا، اس کی بشارت کو، خوشخبری کو دوسروں تک بچانا، یہ ہمارا کرسمس ہے. ہم بھی جب پریویس لائف میں تھے، جب ہمیں بھی کچھ نہیں پتا تھا، ہم بھی کرسمس میں اپنے برے کاموں کی تیاریاں کرتے تھے، غلط کاموں کے لیے تیاریاں کرتے تھے. کچھ لوگ تو پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے کرسمس پر یہ کام کرنے ہیں. کرسمس پر ہم نے، جس نے کبھی شراب، جس نے پورا سال شراب نہیں پی، تو اس کا ذہن مائنڈ ہوتا تھا کہ میں نے کرسمس پر شراب پی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہم پورا سال غلط کام نہیں کرتے، پیتے نہیں، بس کرسمس سے پی لینے ہیں، یسوع مسیح اس لیے نہیں آنا کہ آپ کے لیے، کہ آپ کو یسوع مسیح یہ کہ ڈرنک کریں، شراب کریں، شراب پئیں، اس مقصد کے لیے یسوع مسیح نہیں آیا. آج کا جو میسج آپ تک شیئر کیا جائے گا، آپ تک بیان کیا جائے گا، اس میں خداوند یسوع مسیح کا اس زمین پر آنے کا ہمیں مقصد پتا چلے گا کہ کس لیے یسوع مسیح ہے. اگر وہ مسیح ہو کے آیا، کرائسٹ مسیح ہو کر اس زمین پر آیا، تو مقصد کیا تھا کرائسٹ کا، مسیح کا اس دنیا میں آنے کا؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے کلام مقدس میں سے لوکا رسول کی انجیل 4 باب اور اس کی 18 آیت سے لے کر میں 19 آیت تک پڑھوں گا. 18 سے 19 آیت تک پڑھوں گا. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اگر مل جائے تو آمین بول سکتے ہیں، پھر میں پڑھوں گا. لکھا خدا کے کلام کے اندر، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسیح کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، خداوند کے سالے مقبول کی کیا کروں، منادی کروں. کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت، باعث سے نصیحت اور باعث سے نجات ٹھہرے. آمین. اس آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح جس شہر میں رہتے ہیں، جس شہر کے اندر یسوع مسیح کی پیدائش یعنی کہ یسوع مسیح کی پرورش ہوئی ہے، یہ بات اس شہر میں کی جا رہی ہے. ناصرت کا شہر جو ہے، ناصرت میں لکھا خدا کے کلام کے اندر 16 آیت میں کہ ناصرت میں جب یسوع مسیح آیا، جہاں اس نے کیا پائی تھی؟ پرورش پائی تھی. یعنی کہ یسوع کی وہاں پرورش ہوئی تھی، یسوع وہاں سے بلونگ کرتے تھے، یسوع مسیح کا علاقہ تھا ناصرت. اگر آج آپ بھی خدا کے فضل سے، خداوند کے فضل سے، خداوند آپ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم یروشلم جائیں اور وزٹ کریں، اسرائیل میں جا کر وزٹ کریں مقدس مقامات کو. تو اگر ہم وہاں کے علاقہ کی بات کریں تو سب سے ایکسپینسو، سب سے جو مہنگا ترین علاقہ ہے وہ ناصرت کا علاقہ ہے. جہاں ہمارے پاکستان میں اسلام آباد بہت ایک اس کو مہنگا ترین شہر کہا جاتا ہے، ایک بہت خوبصورت بھی مہنگا ترین شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ ناصرت کے اندر ابھی بھی آپ اگر جائیں، خدا آپ کو لے کر جائیں، تو سب سے مہنگا گھر ادھر ملتا ہے. اگر کسی نے رینٹ پہ بھی لینا تو سب سے زیادہ رینٹ ہے ناصرت کا. سب سے زیادہ جو وہاں کی ویلیو ہے اس جگہ کی ہے، ناصرت کی ویلیو ہے. کیوں ویلیو ہے؟ کیونکہ ادھر میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے پرورش پائی تھی، یسوع مسیح وہاں سے بلونگ کرتے تھے. ہیلیلویا. اس لیے اس شہر میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اس شہر کی. لیکن اس شہر میں سب سے زیادہ مسلم رہتے ہیں. کرسچینٹی کی تعداد نہیں ادھر، لیکن زیادہ تر مسلمز کی تعداد زیادہ ہے ادھر. کچھ لوگ بڑے شوق کے ساتھ
بڑے ایمان کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ ادھر گھر لیتے ہیں، اور وہاں پر گھر لینا عام بات نہیں ہے۔ اور میں یہ سن رہا تھا ہسٹری میں کہ اگر کوئی بھی وہاں گھر لیتا ہے تو عام بندہ ادھر ناصرت میں گھر نہیں لیتا، کیونکہ وہ کسی عام شخص کا شہر نہیں ہے، ایک بڑی ہستی کا شہر ہے۔ کس کا شہر ہے؟ وہ یسوع مسیح کا شہر ہے۔ ہیلیلویا۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر کہ ناصرت میں آیا، جہاں اس نے کیا پائی تھی؟ پرورش پائی تھی، جہاں یسوع مسیح بڑے ہوئے تھے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام کے اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا۔ عبادت خانہ میں یسوع مسیح کے اکثر اوقات جب ہم ہیکل کے اندر آتے ہیں، جب کوئی اگر آپ کیتھلکس میں دیکھیں تو وہاں کلام سنانے سے پہلے 2 تلاوتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ 2 تلاوتیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس ہیکل کے اندر بھی یسوع مسیح کو تلاوت کا موقع، یعنی کہ یسوع مسیح تلاوت کرنے کے لیے آلٹر پہ گئے، تو لکھا خدا کے کلام کے اندر پڑھنے کو کیا ہوا؟ کھڑا ہوا، اور کس کا صحیفہ پڑھنے لگا؟ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنے لگا۔ وہی صحیفہ جس صحیفے میں یسوع مسیح کی پیشن گوئی کی بات ہوئی تھی۔ اور پیشن گوئی کیا ہے؟ لکھے خدا کے کلام کے اندر کہ خداوند کا روح کس پر ہے؟ مجھ پر ہے۔ اگر ہم یسایہ 11 کو پڑھیں تو وہاں یسوع مسیح کے ساتھ کتنی روحیں خدا کی؟ 7 روحیں کام کرتی ہیں۔ 11 باب یسایہ نبی کا صحیفہ 11 باب اس کی پہلی آیت، لکھا خدا کے کلام کے اندر، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کا روح، پہلا خداوند کس کا روح؟ خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ اب پہلی روح کیا ہے؟ خداوند کی روح کس پر ٹھہرے گی؟ یسوع مسیح پر ٹھہرے گی۔ حکمت دوسری، اور خرد کی روح تیسری، مصلحت چوتھی، اور قدرت کی روح پانچویں، معرفت چھٹی، اور خداوند کے خوف کی روح ساتویں۔ 7 روحیں کس کے ساتھ؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا کرے گی؟ کام کرے گی۔ زمین پر جب یسوع مسیح اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے تو یسوع مسیح کے ساتھ یہ روحیں کام کرتی تھی۔ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ کس کی روحیں؟ خدا کی روحیں۔ کلام بیان کر رہے ہیں کہ یسوع کے تنے سے کیا نکلے گی؟ کونپل نکلے گی۔ پھولوں میں سے کیا نکلتی؟ کونپل نکلتی ہے پہلے، پھر کوئی پھل یا کچھ لگتا جا کر، ایسا ہی۔ تو یسی کون ہے؟ یسی بزرگ داؤد کا باپ ہے، یعنی کہ بزرگ داؤد کی نسل سے ہوگا تو ابراہیم کی، لیکن داؤد کی اصل اور نسل سے یسوع مسیح کیا ہوں گے؟ پیدا ہوں گے۔ اس کی نسل سے یہ پہچان بتائی جا رہی ہے۔ ہوئے تھے یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے، لیکن جو مقدسہ مریم، مقدس یوسف، یہ ان کی نسل سے ہے، وہ ان کی نسل سے بلونگ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع کے تنے سے ایک کیا نکلے گی؟ کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور کیا ہوگی؟ شاخ پیدا ہوگی۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری کیا ہو؟ ڈالیاں، اور جو ڈالی مجھ پر قائم نہیں لاتی ان کو وہ کیا کرتا ہے؟ کاٹ ڈالتا ہے۔ پرانا ڈرامہ اگر ہم مطالعہ کریں تو یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اگر پڑھیں پرانے ڈرامے کو، یسایہ کو بھی پڑھیں، اس میں بھی لکھا ہے کہ یسوع مسیح گھائل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے، سیاست ہوگی، مارا جائے گا، کوٹا جائے گا، داڑھی نوچی جائے گی۔ یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ہر چیز جب یسوع مسیح نے، اگر ہم پوری کتاب کو پڑھیں، پیدائش سے لے کر ملاکی تک پرانا اعلانامہ اگر ہم پورا پڑھیں تو پرانے اعلانامے کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پرانے اعلانامے کو پڑھیں تو ہر ایک کتاب یسوع مسیح کے آنے کا ثبوت دیتی ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، یعنی کہ بائبل مقدس کے اندر کوئی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو یسوع مسیح کے بارے میں نہیں بتاتی۔ پیدائش کو پڑھ لیں، یسوع کی خوشخبری ملے گی۔ اگر خروج کو پڑھ لیں، یسوع کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا۔
गिनती को पढ़ लें, एबार को पढ़ लें, यशुआ की किताब पढ़ लें, अस्तिशना पढ़ लें, आप रूत की किताब पढ़ लें, बोइस की किताब पढ़ लें, सैमुएल की किताब पढ़ लें, अगर आप तवारीख की किताब पढ़ लें, मिलाकी की किताब पढ़ लें, जितनी भी पुराने एहतनामे की किताबें हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, हर एक किताब आपको यीशु मसीह के पैदा होने की और यीशु मसीह के लिए जो सियासत, जो दुख उसने सहने हैं, उसके बारे में बाइबल मुकद्दस पुराना एहतनामा हमें बताती है मेरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि खुदावंद की रूह यीशु मसीह ने कहा किस पर है? मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए क्या किया है? मसा किया है। क्या किया है? मसा किया है। वो गरीब नहीं जिनके को खाने कुछ नहीं, ये वो गरीब नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है, ये वो गरीब नहीं है कि जो 3 टाइम की रोटी खा नहीं सकते। ये उन गरीबों की बात नहीं हो रही, ये उन गरीबों की बात हो रही है जो खुदा की हजूरी से खारिज है। ये उन गरीबों की बात हो रही है जिनको आस है यीशु के आने की। ये उन गरीबों की बात हो रही है कि जो यीशु को देखने के लिए बेताब है। ये उन गरीबों की बात हो रही है कि जो पुराने एहतनामे से पढ़ रहे हैं कि एक मसीहा इस दुनिया में आएगा। 2 तरह के गरीब आपको मैंने बताया, एक गरीब वो है जो खुदा की हजूरी से खारिज है और दूसरे गरीब वो है जो यीशु की आस के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि मुझे मसा किया गया कि गरीबों को क्या दूं? खुशखबरी दूं। खुशखबरी क्या है? आज भी मैंने बताई बात कि खुशखबरी बड़ी खुशखबरी, छोटी खुशखबरी नहीं है। यीशु मसीह की जुबाने मुबारका से किए गए सारे अल्फाज जो है वो खुशखबरी के अल्फाज है। हालेलुया। ये इंजील खुशखबरी से भरी हुई है। अगर आप पूरी इंजील, पूरी किताब नए तरह पढ़ लें जो फजल में हम चल रहे हैं, ये खुशखबरी से भरी हुई है। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए क्या किया गया है? मसा किया गया है। जमीन पर रहकर लोगों को मसा किया जाता है पास्टर बनाने के लिए, मुबशर बनाने के लिए, डीकन बनाने के लिए, एल्डर बनाने के लिए, लेकिन एक वाहिद ऐसी हस्ती है जो आसमानों से ही यानी कि खुदा बाप से ही मसा होकर इस दुनिया में आए। हालेलुया। अनॉइंटेड होकर यानी कि रूह कुदुस की कुदरत से भरकर, रूह कुदुस की आग से भरकर, मसा से भरकर, अनॉइंटिंग से भरकर यीशु मसीह इस दुनिया में आए मेरे। हालेलुया। और रूह कुदुस की कुदरत से जो पैदा हुआ हो, जो रूह कुदुस की कुदरत से जो पैदा हुआ हो, आप मुझे ये बताएं कि वो हस्ती आम हस्ती नहीं है। दुनिया में कलाम मुकद्दस को पढ़ लें, तालमूद को पढ़ लें, हिस्ट्रियों को पढ़ लें, यूट्यूब को देख लें, गूगल को देख लें, कोई ऐसी हस्ती ऐसी इस दुनिया में नहीं आई जो रूह कुदुस की कुदरत से पैदा हो सके और जो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर आसमानों पर जिंदा उठाया जाए। वो एक ही है और वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, जिसकी आज हम विलादत मना रहे हैं, जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं, पैदा होने का जश्न मना रहे हैं। ये जश्न, ये खुशी, ये खुशखबरी हम लोगों के लिए आम खुशखबरी नहीं है, ये बड़ी खुशखबरी की बिशारत है। मैंने सुबह ये बताया कि गडरियों को, चरवाहों को बड़ी खुशखबरी की बिशारत देने के लिए कहा गया। कितनी बड़ी खुशखबरी की बिशारत देने के लिए उन्हें कहा गया। जो मैसेज उनको मिला, मैंने बताया सुबह कलाम बयान करता कि जाकर डिस्कस करके उन्होंने वही बिशारत का काम किया और जाकर जो बोल उनको दिए गए थे, वही बोल जो फरिश्ता ने खुदावंद की तरफ से उनके कहा, वही बोल उन्होंने अदा किए यीशु मसीह के लिए। यानी कि जो कहा गया था बशारत का काम करने के लिए, वही बशारत का काम उन्होंने किया। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आज खुदावंद ने हमें भी मसा किया। अगर आप बैप्टाइज हैं, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, तो आप मसाशुदा हो गए। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो खुदावंद ने अपना रूह आप पर भी फूंका है। रूह कुदुस आपको भी अता किया है, क्योंकि कलाम बयान करता है कि जब तुम बपतिस्मा लोगे, रूह कुदुस तुम इनाम में पाओगे।
तो फिर जिसने इनाम देना वो बताकर इनाम नहीं देता कि भैन मैं तेनू इनाम देने लगा, बल्कि इनाम नूरों का बाप लिखा खुदा के कलाम के अंदर कि वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। हालेलुया। और तालबों को क्या देता है? बदला देता है। इस हैकल के अंदर जब यीशु मसीह खड़े होकर तलावत करने लगे कि कहा कि इसलिए मसला किया कि गरीबों को क्या दूं, खुशखबरी दूं। गडरिये क्या थे? ये गडरियों को खुशखबरी दी गई, बड़ी खुशखबरी दी गई। गडरिये क्या थे? गरीब का मतलब कि रद्द किए हुए लोग थे। ये इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। ये अगर इन चरवाहा किसी भी चरवाहे के पास जब स्मेल आती है, उनके कपड़े आप देखे गंदे होते हैं। ये वो गरीब है, इन्हें बताया गया यीशु की खुशखबरी देने के लिए। आगे लिखा है, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की क्या सुनाऊं, खबर सुनो। अंधों को बिनाई पाने की क्या सुनाऊं, खबर सुनो। वो अंधा हो गया रसूल आज़म पौलुस रसूल जब यीशु मसीह के लोगों को सताता था, यीशु मसीह के लोगों को तंग करता था, और लिखा खुदा के कलाम के अंदर वो एक बड़ा प्लान कर दमिश्क की राह पर जा रहा था, उन मसीहों को गुलाम बनाकर लाकर अपने पास कैद के लिए। और लिखा खुदा के कलाम के अंदर के उस पर एक नूर चमका, और उस नूर के अंदर यीशु मसीह थे। उसने कहा तू कौन है? यीशु ने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू क्या करता है, सताता है। यीशु बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपको सताया जाए तो समझो यीशु को सताया जा रहा है। अगर आप मसीह हैं, अगर आपको सिर्फ रद्द किया जा रहा है, यीशु को रद्द किया जा रहा है, क्योंकि खुदावंद ने आपको और मुझे अपनी शबीह पर बनाया है। यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाकर हमें लेपालक बनाया है, हमें अब्बा कहने का खुदा बाप को हक बख्शा है। राह कर जिंदगी यीशु है। यीशु एक वसीला बना है। यीशु दरमियानी खड़ा हो गया है, दरमियान में खड़ा हो गया है। मैंने सुबह बताया कि बैतलहम जो है वो एक सेंटर में है। जो अगर आप मैप को देखें, मैप के अंदर बैतलहम जो शहर वो एक सेंटर में शहर है। सलीब को देखें वो दरमियानी है। अगर आप यीशु को देखें तो यीशु भी सलीब पर दरमियान में है। और कहा खुदा ने कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा। यीशु मसीह दरमियानी हो गए, दरमियान में खड़े होकर हमें यीशु मसीह ने बचाया अपने पाक खून के वसीले से। हालेलुया। कि कैदियों को क्या करूं, रिहाई, और अंधों को, रसूल आज़म अंधे हो गए। पौलुस रसूल की आंखों पर छिलके आ गए, उसकी आंखें देखा वो नजर आना बंद हो गया। और खुदा के रूह ने हननिया को कहा कि उस पर जाकर दुआ कर ताकि वो क्या पाए, बिनाई हासिल करे। उसने खुदा यीशु मसीह की खबर सुनाई और उस पर हाथ रखकर दुआ की, और वो उसका जो अंधापन था वो खत्म होकर उसको बिनाई मिल गई। आज यीशु मसीह जब राह पर जा रहे थे तो तमई के बेटे बर्तन माई को भी यीशु मसीह ने, जो अंधा था, जो कह रहे थे इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मुझ पर क्या कर, रहम कर, यीशु मसीह ने उसे भी क्या दी, बिनाई दी। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में इस दुनिया में आने के लिए पुराने नामे पेशन को ये कर रहे कि वो जब उस दुनिया में आएगा अंधों को बिनाई देगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, कोड़ियों को पाक साफ करेगा, और क्या करेगा कि गरीबों को क्या करेगा, खुशखबरी देगा। जिस गरीब के पास यीशु चला जाए वो गरीब नहीं रहता बल्कि वो अमीर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर खुदा के दाहिने हाथ में कुदरत है तो बाएं हाथ में दौलत भी है। खुदा हमें बरकत भी देता है और दौलत भी देता है। ये दोनों चीजें खुदा देता है। तब देता है जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम होता है, जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें क्रिसमस किस तरीके से मनाना है। आज आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी अगर अपने रिश्तेदारों के पास जाएं तो फजूल की बातों के बजाय हम वो बात करें जो उनके लिए बरकत का वारिस बने। हम वो बातें उनको बताएं कि उनको बता सके कि हकीकी क्रिसमस ये है। हम ये शराबें पीकर, लड़ाई झगड़े कर दूसरों के खिलाफ बातें कर नफरतें अपने दिल में भर कर ये क्रिसमस ना मनाएं। आप यीशु को रद्द कर रहे हैं। अक्सर लोगों ने इरादा किया होता है कि ऐती क्रिसमस से बिल्कुल सही लड़ाई करनी है। ऐती क्रिसमस से मैं
जिन्हें ना मेरी बहुत ही बिगड़ी होंगे ना मैं ज्यादा लड़ाई करनी शराब पी कर। जितने मुझे देख रहे हैं मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि शराब जो है, ये शराब के बारे में हमें बाइबल मुकद्दस में मना किया गया है। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, शराब के मतवाले ना भरो, इसमें इससे बदचलनी पैदा होती है। और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, नशाबाज आदमी हरगिज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। शराब के बारे में हमें सख्ती से मना किया गया है। लोगों ने मैं को शराब समझा हुआ है, मैं शराब नहीं है, मैं अंगूरों की रस है, जो हम अक्सर औकात शायर बानी के टाइम यूज करते हैं। लेकिन आज हमारे मसीहों ने जो कलाम से दूर हैं, जो कम अकल हैं, जिनको कलाम के बारे में नहीं पता, वो कहते हैं कि हमें यीशु मसीह ने जो मोजा किया वो शराब का मोजा किया। अफसोस के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ और खुदा से डर कर ये बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर औकात लोग अपने दूसरी नॉन क्रिश्चियनिटी को, यानी कि मुस्लिम भाइयों बहन भाइयों को बताते हैं कि हम लोगों के अंदर शराब जो है वो आम है। ये झूठ बात है, ये गलत बात है। और सबसे ज्यादा जो शराब के लिए जो परमिट जो तैयार होता है वो हम लोगों का होता है। और अफसोस के साथ हमारे कुछ काहिन लोग होते हैं, मैं उन काहिनों की बात कर रहा हूं कि काहिन लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर साइन कर कर देते हैं, तो स्टैंप लगा के देते हैं कि ये हमारे चर्च का बंदा है, ये हमारा मेंबर है, आप इसका परमिट बनाएं। खुदा ने इसलिए आपको काहिनों को ये बात बताना चाहता हूं कि क्या खुदा ने आपको इसलिए खड़ा किया कि आप लोगों को बुरे कामों का लाइसेंस दे, बुरे कामों का परमिट दे। अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूं, जितने भी देख रहे हैं ट्रांसमिशन के वसीला से, सब तक ये बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर शराब जो है इसके बारे में मना किया गया है, सख्ती से मना किया गया है। वो लोग मसीह नहीं है जो शराबें पी पी कर बुरे काम करते हैं, वो मसीह नहीं है, बल्कि हकीकी मसीह वो है जिसके चाल चलन से पता चले कि ये किसका बंदा है, मसीह का बंदा है। रफाकत मसीह या शफकत मसीह नाम साथ लिखवाने से मसीह नहीं हो जाता वो, बल्कि मसीह जैसा चाल चलन रखने के साथ मसीह वो बनता है। उसके अंदर हलीमी होनी चाहिए एक मसीह के अंदर। आज आपको बताना चाहता हूं कि एक मसीह के अंदर कितनी क्वालिटी होनी चाहिए। नरमी उसके अंदर होनी चाहिए, नरम मिजाजी उसके अंदर होनी चाहिए, हलीमी उसके अंदर होनी चाहिए, बर्दाश्त उसकी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। एक मसीही को जो वो अगर हकीकी मसीह है, ईमानदार है, उसे दुखों का सामना करना पड़ेगा, वो दुखों के लिए तैयार हो जाए। उस बियाबान के रास्ते से गुजर कर, जब वो बियाबान के रास्ते से होकर गुजरेगा, तब ही वो मंजिले मकसूद तक पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर बनी इस्राएल बियाबान में से गुजर कर निकली तो उसके बाद खुदावंद ने उन्हें मन खिलाया, हर चीज खुदावंद ने उनको, वो लिखा खुदा के कलाम के अंदर, ना जूतियां, हर कोई चीज, ना कपड़े उनके फटे, कुछ भी नहीं हुआ उनको। क्यों? क्योंकि वो खुदा की कौम थी। खुदा ने हमें भी बनाया है, अपनी शबीह पर बनाया है। तो आज अपनी जिंदगी से इरादा करें कि यीशु मसीह इस दुनिया में, जो खुदावंद ने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, मुझे खुशखबरी देने के लिए, अंधों को बेनाई देने के लिए मुकर्रर किया गया, मसा किया गया। तो आज आपको जितने मुझे देख रहे हैं, जितने हम यहाँ बैठे हैं, आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो आम मकसद नहीं है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद के लिए अगर यीशु मसीह इस दुनिया में मुकद्दस मरियम को, मुकद्दस यूसुफ को मुकर्रर किया गया यीशु मसीह के लिए, तो जब यीशु मसीह पैदा हुए तो ना मुकद्दस मरियम ने, ना मुकद्दस यूसुफ ने लोगों को दावतें देकर ये नहीं कहा कि आओ मेरे बेटे को या मुझे ये सजदा करो, बल्कि खुदा के रूह ने, खुदा के फरिश्ता ने उन्हें बताया, मजूसियों को बताया। खुदा ने ज़िक्रिया नबी अलिशबा के लिए भी यूहन्ना नबी को भेजा इस दुनिया के अंदर छठे 6 महीने पहले। लेकिन किसने बताया? खुदा के फरिश्ते ने बताया, जबराइल फरिश्ते ने बताया। और आपको बताने का मकसद ये है कि जिसकी खुशखबरी, जिसके पैदा होने की खुशखबरी फरिश्ते आके दे रहे हैं, खुदा का रूह ने दे रहा है, तारे दे रहे हैं, चरिंद दे रहे, परिंद दे रहे हैं, तो मुझे और आपको इस बात पर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि यीशु मसीह इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए। यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद आम नहीं है, क्योंकि बाइबल बयान कर रही है
खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि खुदावंद का रूह किस पर है, मुझ पर है, इसलिए मुझे उसने क्या किया, मसा किया। इसलिए तो हम क्रिस मसीह और मास मसा किया हुआ हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो आओ हम अपनी जिंदगी से खुदावंद के जलाल को जाहिर करें और तरीकी के बुरे कामों को, नापाकी के बुरे कामों को अपनी जिंदगी से दूर करें और हकीकी खुशी मनाएं, हकीकी खुशखबरी यीशु की दुनिया तक पहुंचाएं, दूसरों को भी यीशु की अब दूसरी कमिंग के लिए, दूसरी आमद के लिए, बादशाही के लिए, किंगडम के लिए लोगों को तैयार करें। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हम भी यीशु को अड़ करके क्या कर सके, इस्तकबाल कर सके। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बहुत बरकत दे और कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे, ताकि हम बहुत सा फल लेकर आए। एक दफा फिर मेरी तरफ से और सारी फैमिली की तरफ से, चर्च